Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about the dimensional analysis. Today, we are going to see that the applications of the dimensional analysis, as well as we are going to solve few numericals based on the dimensional analysis. So, the question number 1 is example 2.15. It says that let us consider an equation half mv square is equal to mgh, where m is the mass of the body. Okay, m is the mass of the body, and v is the velocity, g is the gravitational acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether the equation is dimensionally correct or not. So this is what the question is given, that half mv square is equal to mgh. This is the question is given in the numerical, and what we have to do, we have to justify that is it right or wrong in the way of dimensional. So dimensionally it is right or not, we have to find. So let us consider that this one is the left hand side and this one is the right hand side, and if both the dimensions are same, if we found the dimensions are same on the both sides, then we are going to say that yes, it is dimensionally correct. And if the dimensions are not going to match, we will gonna comment like the dimensions are not matching, so the equations are not satisfy dimensional analysis or not correct on the basis of dimensional analysis. So as we know, half is the constant and half does not carry any kind of dimensions. M is the mass of the object, v is the velocity of the object, m is also mass of the object, g is acceleration, h is height. Mass means to say m, velocity means to say meter per second, as we can say like m, and velocity is meter per second means to say length by time. So the dimensions of the left hand side could be written as m1 l1 t minus 1, m1 l1 t minus 1, and here it is also a square of the velocity. Here it is also square of the velocity, so it would be written as square of the dimensions. That means m1 l2 and t minus 2. So this is the dimensions of half mv square. So the dimensions of left hand side, dimensions of LHS is equal to m1 l2 t minus 2. Let's begin with the right hand side, mgh. In our right hand side, mgh is given, m for mass, g for acceleration, meter per second square, h is height means to say length. So mass, meter means to say length, second square means to say time square, and l for the height. So m1 l square and t minus 2. So the dimension of right hand side is m1 l2 t minus 2, and the dimension of left hand side is also m1 l2 t minus 2. So by the example of this question, we can say the dimension of both the sides are matching. It means the equation is dimensionally correct. Is it clear to everyone? आया समझ में? देखिए एक बार फिर से समझते हैं क्या किया हमने. हमें एक इक्वेशन दे रखी है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. ठीक है. अब हमें ये पूछा है कि आप इसे फाइंड आउट करके बताइए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमें क्वांटिटी दे रखी है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं एम, एल और टी की फॉर्म में, और अगर हमें यूनिट भी दे रखी है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं एम, एल और टी की फॉर्म में. एम मीन्स टू से मास, एल मीन्स टू से लेंथ, एंड टी मीन्स टू से टाइम. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज गिवन एज हाफ mv स्क्वायर. One more thing, that constant does not carry any kind of dimension.
तो हाफ जो था उसकी जो डायमेंशन होती नहीं तो उसे हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद आता है हमारा mv स्क्वायर। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m मींस टू से मास, मास हमारी डायमेंशंस में आता है तो m लिख दिया हमने, कैपिटल M। उसके बाद आती है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लिखने के दो तरीके हैं, वेलोसिटी को लिखने के दो तरीके, या तो आप इसे लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड यूनिट की फॉर्म में, या तो आप इसे लिख दीजिए यूनिट की फॉर्म में। अगर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, या फिर आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए क्वांटिटी की टर्म्स में। वेलोसिटी का मतलब होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का भी स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप उसे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। यूनिट में कन्वर्ट करोगे तब भी आपका सिंपल रहेगा, m मींस टू से मीटर, मीटर मींस टू से लेंथ एंड सेकंड मींस टू से टाइम, तो l/t का होल स्क्वायर। या फिर अगर हम क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस टू से लेंथ, टाइम मींस टू से t का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी स्क्वायर की डायमेंशंस क्या आ जाएगी, L2 डिवाइडेड बाय T2, L2 डिवाइडेड बाय T2। अब T2 जो है वो पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आएगा तो ये हो जाएगा हमारा L2 और T माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी v स्क्वायर की डायमेंशन, और m की डायमेंशन थी हमारे पास m1। तो ओवरऑल डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज m1 L2 T माइनस 2। आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे, दैट इज गिवन एज m, g एंड h। m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन, h फॉर हाइट। इट मींस m मास, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर मींस टू से L1 T2 and h means to say height, height means to say length, length means to say l। तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आ गई L1 M1 L2 डिवाइडेड बाय T2। T2 ऊपर जाएगा तो M1 L2 T माइनस 2। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन थी वो आई थी हमारी M1 L2 T माइनस 2, और राइट हैंड साइड की जो आई है वो भी आई है M1 L2 T माइनस 2। बोथ द डायमेंशंस आर सेम, सो दैट वी कैन से दैट this equation is dimensionally correct। okay, सिंपल है। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड की अलग डायमेंशन निकाल लो, राइट हैंड साइड की अलग डायमेंशन निकाल लो, दोनों को मैच कर लो। अगर मैच हो रही है तो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, अगर मैच नहीं हो रही है तो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली रॉन्ग है। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ से हमें एक चीज और ध्यान पे रखनी है, हमने क्या पढ़ा था, दैट डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेंट की, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा अगर 1/2 है तब भी इसकी डायमेंशन यही रहेगी, 3/15 है तब भी डायमेंशन यही रहेगी, या 8 है, 2 है, पाई है, कुछ भी अगर यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उससे डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, दैट इज 2.16। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अब हमें दे रखा है SI यूनिट ऑफ एनर्जी is joule, and joule is defined as kilogram meter square second to the power minus 2, kilogram meter square second to the power minus 2। second to the power minus 2 is given, और दे रखा है हमें the SI unit of energy is joule is equal to kilogram meter square second to the power minus 2, that of speed v is meter per second and the of acceleration a is meter per second square। और हमें दे रखा है velocity v meter per second and acceleration a meter per second square। Which of the formula
For kinetic energy K given below, can you rule out on the basis of dimensional arguments m stands for the mass of the body? अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले तो हमें 3 यूनिट्स दे रखी है, जूल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 एंड मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही हमें क्या कह रखा है कि यहाँ पे हमें k जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं ऑप्शंस में। काइनेटिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज ऑप्शन में दे रखे हैं। फर्स्ट वन है हमारा m² v³, सेकेंड वन है हमारा हाफ mv², थर्ड वन है हमारा ma, फोर्थ वन है हमारा 3/16 mv² एंड फोर्थ वन है हमारा हाफ mv² प्लस ma, हाफ mv²। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कुछ यूनिट्स दे रखी है और साथ ही हमें कह रहेगा है कि k जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच वन फॉर्मूला इज करेक्ट on the basis of dimensions, on the basis of that. Now k is kinetic energy and the unit for the kinetic energy is joule, and unit joule is given as kg m² second to the power -2। तो अब हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाए, whenever got confused comes to the basic से स्टार्ट करेंगे। हमें जूल की यूनिट्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डायमेंशंस में। जूल की क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है, हमें जूल दे रखा है कि भाई जूल जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, डायमेंशंस में। बताइए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 की डायमेंशंस क्या होगी, कन्वर्ट कीजिए। So here kilogram kg represents the mass, meter square m represents the length, meter represents the length, power दे रखी है 2, L2 हो जाएगा, second to the power -2, second means to say time to the power -2. So this is the dimensions, m1 L2 t-2 is the dimension for the joule। अब देखिए जूल की जो डायमेंशन आई है वो आई है हमारे पास m1 L2 t-2। क्या काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी हमारी जूल होती है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी हमारी जूल होती है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस भी क्या होगी हमारी, m1 L2 t-2, because it is also a kind of energy, it is also a kind of energy। तो मतलब इन इक्वेशंस में हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस तो फाइंड कर लिए, m1 L2 t-2। तो यहाँ पे जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखे काइनेटिक एनर्जी की, उन सब की डायमेंशंस हमने निकाल ली है m1 L2 t-2। अब हमें कंपेयर किसे करना है, केवल और केवल राइट हैंड साइड को। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। जिस वाली इक्वेशंस में राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल हो गई, वही हमारी इक्वेशन करेक्ट है, वही फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट वाले में दे रखा है हमें m² v3, m मींस टू से मास मतलब कि m2, v मतलब कि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्यूब, m2 डिस्टेंस मींस टू से लेंथ, टाइम मींस टू से t का होल क्यूब, इट मींस m2 L3 t-3। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब पहला वाला फॉर्मूला नहीं है, गलत है। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाले की राइट हैंड साइड देखते हैं डायमेंशंस कितनी आती है। सेकेंड वन में दे रखा है हमें हाफ mv², हाफ कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस हो गया, m मींस टू से m, v² मींस टू से लेंथ अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, इट मींस m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। सेकेंड वाली मैच कर रही है, सेकेंड वाली सही है। थर्ड वाली देखते हैं, थर्ड में दे रखा है हमें ma,
mass into acceleration. Mass means to say m, acceleration means to say length upon time square. It means m1 l1 t minus 2. ma किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. F इज इक्वल टू ma. तो फोर्स के डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास? m1 l1 t minus 2. क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच कर रही है? नहीं कर रही है. सेकेंड वाला भी हमारा, थर्ड वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन देखते हैं. फोर्थ डी, दैट इज 3/16 mv स्क्वायर. 3/16 कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस हो जाएगा. mv स्क्वायर की डायमेंशन हमने निकाली थी. m1 l/t का होल स्क्वायर, m1 l2 t minus 2. तो डायमेंशनली अगर देखा जाए तो ये वाले भी इक्वेशन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. इक्वेशन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. नाउ लेट्स सी फोर्थ वाली हो चुकी है. फिफ्थ वाली देखते हैं. ऑप्शन ई, दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस ma. हाफ डायमेंशन लेस mv स्क्वायर m1 l1 l2 t minus 2 अभी निकाली थी, प्लस ma की निकाली थी अभी हमने m1 l1 t minus 2. दोनों डायमेंशंस क्या है? अलग अलग है. डायमेंशन अलग अलग है तो ऐड नहीं हो सकती. अलग अलग है तो ऐड नहीं हो सकती. अगर ऐड नहीं हो सकती तो ये डायमेंशंस जो है वो भी इससे मैच नहीं कर रही. मतलब लास्ट वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो हमारे पास दो इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. एक तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में कांस्टेंट आ रहा है हाफ और एक में कांस्टेंट आ रहा है 3/16. तो अगर डायमेंशनली हम बात करें so both the options are right. But if we talk about the exact formula, then the only and only option number 2 is right. So dimensional analysis can give us the information that is the equation is dimensionally correct or not, but it does not provide us the information constant present in the equation, that what constant must we have to take for the correction of the formula. So this is what all about the examples 15 and the 16. In our next lecture, we are going to discuss about the example number 2.17, and this is the last example for our chapter. Okay, if you have any doubt, just ping me.